नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, सरकार ने तोहफा दिया है लोगों को। अब 9 की जगह 12 रियायती सिलेंडर मिलेंगे। 12 सब्सिडी सिलेंडर पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। 1 अप्रैल 2014 से 9 की जगह 12 सिलेंडर मिलेंगे। चुनाव से पहले सियासी सौगात दी है सरकार ने। अब 12 सब्सिडी सिलेंडर मिलेंगे 9 सिलेंडरों की जगह। 1 अप्रैल 2014 से 9 की जगह 12 सिलेंडर मिलेंगे। इससे पहले एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी ने ये संकेत दे दिए थे कि रियायती सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए। आइए आपको सीधे सुनवाते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर वीरप्पा मोइली क्या कुछ कह रहे हैं। According to this, it will come to about 80,000 crores. 18 or 80? No, 800 rupees per cylinder. And ultimately it may come about to 80,000 crores. 80,000 crores subsidy. Yeah, LPG. Up if it is 9. Now it will, if it is increased to 12, which decision the cabinet has taken, according to the statistics, 99.2% of the population is covered. I mean, the consumers are covered, and it will come to about with this, it will definitely increase 5,000 crores. This is the this is the subsidy which the petroleum companies and the finance ministry will have to bear on that. But there has been always a claim, and from the representatives of the people, and also our vice president of AACC raised the issue that it has to be increased to 9 to 12. This has also been the real demand, genuine demand, I will say, from particularly from the women folk, because they really the pinch of it. Then we thought the cabinet committee on political affairs thought it appropriate that we take a decision to enact from 9 to 12. Then one more decision, the cabinet also has taken stock of the implementation of the DBTL scheme on this LPG. And the lot of discussions have taken place. And also inside the cabinet and also outside the cabinet. Wherever you go, people say that there are a lot of administrative, technical problems to avail the subsidy. Sometimes, of course, the complaints are also coming that they have to pay the full amount, maybe 1,300 or whatever it may be, and then get the subsidy, which is, according to our officials, it is not exactly correct. The subsidy is always, subsidy is concerned, in fact, that will be paid if it is booked, tomorrow we will get the subsidy according to our records. But whatever it may be, there have been complaints that they have to deposit the full amount. Then there was a lot of inconvenience to them to avail the subsidy. And after having considered the full implication of the things and this is the sentiments expressed by everywhere in the country, many places, many states, including the chief ministers. Then the cabinet has taken a decision that a committee will have to go into the complaints, objections, raise the people with regard to implementation of the subsidy scheme, and till such time the entire Aadhaar linked or the bank linked scheme will have to be kept under hold. So the scheme has been deferred on hold till the committee submits a report on that. So one minute. Let me complete it. So that means to say that people now we are resorting back to the old system where the subsidy will be deposited with the oil companies. They will directly pay the subsidy to the. तो आप सुन रहे थे पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली को, जिनका कहना है कि अब 9 की जगह 12 रियायती सिलेंडर मिलेंगे और 1 अप्रैल 2014 से ये लागू होगा। हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं।
मनीष, 1 तारीख से 1 अप्रैल से अब लोग 9 की जगह 12 रियायती सिलेंडर ले सकेंगे। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो पेट्रोलियम मंत्री को आप सुन रहे थे। कुछ वक्त पहले कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मोहर लगी है। एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि लोगों को 9 की जगह 12 रियायती सिलेंडर दिए जाने चाहिए, यानी सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। पेट्रोलियम मंत्री अभी कुछ वक्त पहले बोल रहे थे कि लगभग एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले 99% उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे। बेशक सब्सिडी में इजाफा होगा, जो सरकारी खजाना है उस पर जो बोझ पड़ेगा वो लगभग 3,500 करोड़ से 5,500 करोड़ तक का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। फ्यूल पर सबसे ज्यादा सब्सिडी पहले से ही दी जाती रही है, लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा की। और इस वक्त जो खबर मिल रही है कि सरकार ने इस फैसले को पर मोहर लगा दी है। बेशक चुनाव से ऐन पहले यह फैसला लिया गया है कि आम जनता को थोड़ी राहत और दी जाए और 9 की जगह 12 सिलेंडर सब्सिडी वाले दिए जाएं, यानी 3 और सिलेंडरों में इजाफा किया गया है। कुछ लोग इस तरह के भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या 3 सिलेंडर सब्सिडी वाले और देने से महंगाई पर लगाम लगेगी। लेकिन इन सब के ऊपर बेशक चुनाव से पहले हो, सियासी सौगात हो, लेकिन आम आदमी के लिए अच्छी खबर है कि 3 और सिलेंडर सब्सिडी वाले मिलेंगे, यानी हर महीने के लिए 1 सिलेंडर आप मान सकते हैं। अब तक लगभग 90% उपभोक्ता सब्सिडी वाले सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे, 10% वो थे जो बिना सब्सिडी का इस्तेमाल करते थे। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक लगभग 99% लोग अब वो होंगे जो सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर इस्तेमाल कर सकेंगे। बेशक सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, 3,500 करोड़ से 5,500 करोड़ तक का बोझ बढ़ेगा 3 सिलेंडर सब्सिडी वाले और बढ़ाने से। चुनाव नजदीक है। बेशक विपक्षी ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये लोगों को एक सौगात दी गई है, सिलेंडर बढ़ाकर 9 की जगह 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। कैबिनेट की मोहर के बाद सिलेंडर की संख्या बढ़ाने पर फैसला हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। और जैसा मोइली जी ने आपको बताया कि क्योंकि पूरे मुल्क से ये रिप्रेजेंटेशंस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जो लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं उनके पास आई, उस संदर्भ में ये फैसला किया गया है कि जो आधार लिंक्ड डीबीटी योजना है, जिसके तहत जो सब्सिडी सरकार देती है वो रीइंबर्स की जाती थी, उसका एक समिति विश्लेषण करेगी और जब तक वो विश्लेषण समाप्त नहीं हो जाता तब तक जो उपभोक्ता है उसको सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर जो पहले सिस्टम था उसी सिस्टम के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत उनको गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जाएगा। सो इन शॉर्ट, इट इज 1 cylinder in the month of February, 1 cylinder in the month of March, in addition to the 9 subsidized cylinders. From the 1st of April 2014, 12 subsidized cylinders in a year at the rate of 1 cylinder a month. A committee to go into the entire ambit of the DBT-linked Aadhaar scheme, and pending the review, the decision is to revert to the old system whereby the consumer will have to pay the subsidized price, which is about 450 odd rupees for an LPG cylinder. Thank you. Any timeline for the committee to submit? Any timeline, sir, for this committee to submit the report? And will the Supreme Court, did the Supreme Court's observation on Aadhaar actually have any kind of impact on this particular decision, and especially the time? तो सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की संख्या बढ़ गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। साल में 9 की जगह अब 12 सिलेंडर मिलेंगे।
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि साल के बचे 2 महीने में एक सिलेंडर मिलेगा, यानी एक फरवरी का और एक मार्च का। हर महीने एक रियायती सिलेंडर मिलेगा, यानी 12 महीने के हिसाब से 12 सिलेंडर। अब 9 की जगह साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। इस साल के बचे 2 महीनों में एक सिलेंडर मिलने वाला है। कैबिनेट की बैठक में सिलेंडर की संख्या बढ़ाने पर फैसला किया गया। 1 अप्रैल से 12 सस्ते एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब 9 की जगह 12 मिलेंगे। इस पर सरकारी खजाने पर जरूर बोझ बढ़ा है। लगभग 5,000 करोड़ का बोझ सरकारी खजाने पर इन रियायती सिलेंडरों में इजाफा करने से बढ़ा है। एआईसीसी की बैठक में राहुल ने की थी सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने की मांग। आपको बता दें, पिछले दिनों हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जरूरत है लोगों को कुछ और राहत देने की और 9 से बढ़ाकर 12 सिलेंडर किए जाने चाहिए। और आज कैबिनेट की बैठक में उस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है।